Hello everyone. So again I am back with another topic of interviews. We are at module 2 of business communication. Today we are going to discuss about interviews. Now, what is an interview? आप लोगों ने वैसे इंटरव्यूज़ के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा कि जब भी बेसिकली हमको किसी जॉब के लिए जाना होता है तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम द इंटरव्यूअर हु इज़ द पर्सन हु आस्क द क्वेश्चन. ठीक है, तो बेसिकली द इंटरव्यूअर आस्क्स द क्वेश्चन टू द इंटरव्यूई, टू द कैंडिडेट हु इज़ प्रेजेंट टू अक्वायर द जॉब. Right? So basically I can say interview is a medium of communication between two or more people. Basically it is a face-to-face interaction. Now here the interview also means view between. View between means here the viewpoint of the interviewee is considered, basically the interview is conducted to know the viewpoint of the interview, to know the information, to get the information about the interviewee, about the candidate who is present for a job. ठीक है, तो here it doesn't also mean कि basically सिर्फ interview जो होता है वो एक job के लिए ही होता है. Many a times interviews are also conducted when you want to have an admission to a particular course. Say for example if you want to go for an MBA, so here also there are sometimes a personal interviews where basically the candidate, the student is asked many questions from a group of person, from a group of professors. ठीक है, and finally the person is selected basically on the basis of the answers which he gives. ठीक है, तो here many a times for an admission to a course also there are the conduct of an interview. Here interviews can be taken by a single person or by a group or a panel of persons. ठीक है, फिर it is always a purposeful consideration. फालतू कामों के लिए इंटरव्यूज नहीं रखते. तो here always whenever an interview is conducted it is always for a purpose. So it is always a purposeful consideration. There are various purposes for conducting an interview. The interviewer can conduct an interview to find the attitude, to find the view, to know the interest, to know the hobbies of the candidate who is present for the interview. Now interviews कब हो सकते हैं? For the recruitment of a staff, for hearing the complaints, at the time of promotion. ठीक है, तो many a times बहुत टाइम पे अलग अलग टाइम पे बेसिकली इंटरव्यूज़ का कंडक्शन होता है. ना ये इंटरव्यूज़ कब हो सकते हैं? In detail we will see about it in our next topic, that is the types of interview. First of all I will say types of interview is very much important from the exam point of view. Many a times this question comes for your exams. या तो brief के लिए आएगा और otherwise कोई भी एक particular type को explain करने आएगा. So you have to study this topic very well. So now our first type of interview is the selection interview. Now selection interview is the most common interview. इसमें क्या होता है? Basically सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू रखा है. फॉर अ जॉब अ पर्टिकुलर कैंडिडेट कम्स इन अ ऑफिस बेसिकली एंड द इंटरव्यूअर आस्क द क्वेश्चंस एंड द पर्सन हैज़ टू टेल द आंसर्स. तो बेसिकली ही इज़ बीन सिलेक्टेड according to the confidence, according to the knowledge, expertise, according to the qualification which he has. Right? So basically what are the objectives of selection interview? The first is to determine the most suitable candidate for the organization. Basically interviews तो बहुत सारे जन का होता है, right? लेकिन उनमें से best कौन है? Who is the best for the organization? To know that selection interview is conducted. The second objective is to give the candidate information about the job and about the company. सिर्फ और सिर्फ basically एक एप्लीकेंट से ही इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करते. इनफैक्ट उस एप्लीकेंट को कंपनी के बारे में, जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन देते भी हैं.
in the interviews. So the second objective is that. Third point is to motivate the candidate to accept the job. अगर से फॉर एग्जाम्पल द कैंडिडेट इज वेरी मच कम्पीटेंट, वेरी मच गुड, तो यर द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट वांट कि ये हमारा जो एप्लीकेंट है वो कंपनी को छोड़ के जाए. तो दे कैन मोटिवेट हिम टू ज्वाइन द जॉब, दे कैन नेगोशिएट हिम, उनका सैलरी वगैरह का इंक्रीमेंट करेंगे, बेसिकली उनसे बात करेंगे कि हम आपको और हाइक देंगे और आपकी सैलरी बढ़ा के देंगे, बस जस्ट यू कम हियर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो द कैंडिडेट कैन बी मोटिवेटेड हियर. फोर्थ इज टू प्रमोट गुडविल टूवर्ड्स द कंपनी. कंपनी की तरफ गुडविल बढ़ाने के लिए, कंपनी की गुडविल बढ़ाने के लिए भी सिलेक्शन इंटरव्यू होता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल हियर से फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंटरव्यू के लिए गई, आई डजंट हैव एनी नॉलेज, आई डजंट हैव कॉन्फिडेंस, बट देन टू उन्होंने मुझसे काफ़ी अच्छे तरीके से बात किया. द इंटरव्यूअर ने मुझे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होने दिया, उसने ट्राई किया कि वो मैं नर्वस ना हूँ, उसने बहुत अच्छी तरीके से मुझसे बात करी. तो ओवरऑल व्हेन आई वुड लीव द ऑफिस इन सम ऑफ द अदर सेंस, मेरे दिमाग में ये होगा फिलहाल मुझे इस कंपनी में जॉब नहीं मिला, बट आई विल स्ट्राइव हार्ड सो दैट मुझे एक टाइम इस कंपनी में जॉब मिले. बेसिकली उस इंटरव्यूअर ने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया दैट इट प्रमोट्स गुडविल टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टूवर्ड्स द कंपनी. तो दिस इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू. ओके, नाउ नेक्स्ट type of interview is assessment or appraisal interview. Now appraisal interview means, say for example एक कंपनी में मुझे जॉब मिल गया है एंड आई हैव बेसिकली मैंने बहुत हार्ड वर्क किया फॉर स्टार्टिंग 2 years. नाउ ईयर आफ्टर से फॉर एग्जाम्पल 2 year वो मेरा ओवरऑल पीरियोडिकल असेसमेंट कर रहा है कि ये स्टार्टिंग के 2 सालों में मैंने कितना खुद में इम्प्रूवमेंट लाया है, मेरा ओवरऑल जॉब परफॉर्मेंस कैसा था, मेरे में क्या वीकनेसेस था, मुझ में क्या स्ट्रेंथ था. ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग नोटिस्ड बाय द मैनेजर्स, बाय द मैनेजमेंट, and overall they come and have an interview with me so that they can tell me what are my weaknesses, what are my strengths, how can I improve myself. Now this is the appraisal interview or the assessment interview. So I will define like this: the periodical assessment, periodical means time to time, the time to time assessment reviewing the subordinate performance, future work plans, how I will work in the future. This is called as appraisal. It is held once or twice a year. ठीक है? It improves the job performance, better relations, and improves communication between manager and the subordinates. Now, what are the steps involved over here? The first is set the scene. Set the scene means basically जो भी आपका एम्प्लॉई है उसको एक अप्रोप्रिएट टाइम पे मैनेजर्स के सामने लेकर आना, उसको बुलवाना. दैट इज सेटिंग द सीन. नेक्स्ट इज रिव्यू पास्ट परफॉर्मेंस. वॉट वॉज द पास्ट परफॉर्मेंस ओवरऑल, ईच एंड एवरीथिंग का एक रिकॉर्ड रखना है, एक ट्रैक रखना है और उसके सामने रखना है कि बेसिकली आपने ऐसे ऐसे काम किया, बेसिकली आप पंक्चुअल थे या नहीं थे कंपनी में, ऑफिस में, whether you were attentive or not, whether you have completed all the task given to you on time or not, whether आपका रिपोर्ट में मिस्टेक्स था या नहीं. तो each and everything is being considered and overall past performance एम्प्लॉय के सामने लेकर आते हैं. Next is agree about new targets. Now here the managers tell him कि how you can perform better, what will be your future targets. वो डिस्कस होता है. ठीक है? If the candidate, if the employee is facing any problem, so at that particular time the employee can tell the problem so that the problem can be solved and he can work in a more appropriate place. Then finding training needs. If the person needs any training, so at that particular time the training can also be provided to him. Next is agree action and follow up plan. Finally the employee agrees कि yes, I will perform more better in the future and follow up is taken by the managers कि जैसे उसने मोटिवेट होके बोला है कि हाँ मैं आगे काम करूँगा और अच्छे से करूँगा, तो अब वो कर रहा है या नहीं. ठीक है? तो these are the steps in which the appraisal interview is taken.
ठीक है. द नेक्स्ट इज द ग्रीवेंस इंटरव्यू. नाउ ग्रीवेंस इंटरव्यू मीन्स, ग्रीवेंसेस मीन्स बेसिकली कंप्लेंट्स. जब भी आपको किसी से भी प्रॉब्लम होती है, शिकवा होता है, बेसिकली मुझे इन बंदे से ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, दैट इज नोन एज ग्रीवेंसेस. तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि देर आर ग्रीवेंसेस अमंग द मेंबर्स, अमंग द सुपीरियर और द सबऑर्डिनेट, बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स. तो बेसिकली देर आर ग्रीवेंसेस. तो इन अ ग्रीवेंस इंटरव्यू द एम्प्लॉई इज बेसिकली, उससे पूछा जाता है, उससे क्लैरिफिकेशन लिया जाता है कि रिगार्डिंग द प्रॉब्लम which he is facing in the organization, to bring about harmony between individuals and the organization. harmony मतलब पीस होना चाहिए. अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, कोई भी झगड़े हैं, तो वो सॉर्ट होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए. उसके लिए ग्रीवेंस इंटरव्यू रखा जाता है. सजेस्टेड वेज क्या है टू डील विद द ग्रीवेंस इंटरव्यू? द फर्स्ट इज लिसन केयरफुली. जब भी कोई एम्प्लॉय अपनी कोई भी प्रॉब्लम बता रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मैनेजर्स, द मैनेजमेंट शुड लिसन टू हिम केयरफुली. द सेकेंड इज आइडेंटिफाई द रियल कॉज ऑफ द ग्रीवेंस. थर्ड इज ट्राई टू सॉल्व देम. एंड देन डोंट गिव फॉल्स प्रॉमिसेस. अगर आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, आप कर सकते हो, तो ही आपको बोलना चाहिए. अगर इन केस आप उस बेसिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो डोंट एट ऑल गिव फॉल्स प्रॉमिसेस. Ensure that the aggrieved realizes that he can always talk to you. Basically उसको ये comfortableness दिलवाओ कि जब भी आपको in future में भी कोई problem हो, you can come to me at any time. तो basically all are the things which are the suggested ways to deal with the grievances, and grievance interview can be taken. Next type of interview is reprimand or the punishment interview. Now this interview is for scolding, for reprimanding. Reprimanding means to tell officially that he has done wrong. ठीक है. और punishing the juniors. It should always be in privacy and never in open. कोई सबके सामने आपको डांटेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना, तो ऐसे ही एम्प्लॉय को भी सबके सामने डांटा जाए, नहीं अच्छा लगेगा. तो it is always suggested that it should be in privacy and not in open. The main aim first is improve work performance. Of course everyone would like कि job performance improve हो. अगर बंदा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पहले subsequent warnings वगैरह दे दी, but then too he is not at all understanding, तो finally punishment interview can be taken. तो here the main motto is to improve work performance, to prevent recurrence of offenses. वापस से गलतियाँ ना दोहराई जाए, इसके लिए रखा जाता है. प्रोटेक्ट अदर फ्रॉम केयरलेस और डेंजरस बिहेवियर. इफ अ पर्सन इज हैविंग अ केयरलेस बिहेवियर और अ डेंजरस बिहेवियर, ही कैन गिव अ basically specific warning can be given to him so that he should not do it in future. So all these are conducted in a punishment interview, reprimand interview. Next type of interview is medical or clinical or psychological interview. Now when a post is to be filled, a candidate is sent to the physician. जैसे ही हम किसी भी बंदे को एक कंपनी में जॉब के लिए रखते हैं, हम सबसे पहले उसको एक बेसिकली कंपनी के डॉक्टर के पास भेजते हैं. ठीक है. सो दैट आफ्टर हिज सिलेक्शन, जब भी वो मेडिकल टेस्ट के लिए जाता है, फिजिकल चेकअप के लिए जाता है, एंड टू फाइंड आउट वेदर ही इज फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड सुटेबल फॉर द जॉब और नॉट. The expert check and analyze the mental capabilities and the traits of the candidate. Basically the candidate is fit enough or not to perform the activities of the organization. This is medical interview. Here the doctor asks the question to the employee and the employee's answers accordingly. Report ready होती है कि basically this employee is fit enough for your job. Next type of interview is under stress interview. आई गेस आप लोगों ने कभी रोडीज़ वगैरह देखा होगा, जहाँ पर जो बेसिकली रघु वगैरह होते थे पहले, जो हमारे जजेस थे. तो बेसिकली वो लोग बंदे को बहुत स्ट्रेस में डालते हैं, जानबूझ के एकदम बहुत हाई वॉल्यूम में झाड़ देना, चिल्ला देना, सो दैट द पर्सन गेट नर्वस. तो दिस इज़ बेसिकली द अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू.
a candidate is put under intentional stress so that his reactions can be observed and tested. बेसिकली आप स्ट्रेस में कैसे काम कर सकते हो, आप स्ट्रेस में अपने आप को कैसे काम और पेशेंस रख सकते हो, दिस इज बीइंग टेस्टेड. द एम्प्लॉयर मे जज वेदर द कैंडिडेट इज स्ट्रॉन्ग इनफ और स्टैंड दी स्ट्रेस. बेसिकली वो स्ट्रेस को कितना हद तक झेल सकता है ये देखा जाता है इन अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू. द पर्पस क्या है बेसिकली? टू टेस्ट द मेंटल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल एबिलिटीज इन द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन. अब वर्स्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग सिचुएशंस आएगी, वर्स्ट सिचुएशन भी आ सकती है, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग इनफ रखते हो, दिस इज बीइंग टेस्टेड. नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज प्रमोशन इंटरव्यू. नाउ से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपनी में 2 साल काम किया और मैंने बहुत अच्छे से काम किया. नाउ आई विल सी टू इट कि मेरे को प्रमोट किया जाए, मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे मेरी बेसिकली सैलरी हाइक हो, मेरी पोस्ट अच्छी हो. फर्स्ट आई वॉज जूनियर एनालिस्ट, अब मुझे सीनियर एनालिस्ट बनाया जाए. तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम प्रमोशन इंटरव्यू लिया जाता है सो दैट दे कैन कम टू नो कि वेदर आई एम केपेबल और नॉट फॉर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सीनियर एनालिस्ट. बेसिकली मैं अच्छे से काम उस जगह पे कर पाऊंगी या नहीं, ये देखने के लिए प्रमोशन इंटरव्यू रखा जाता है. तो अ पर्सन हु व्हाइल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स ड्यू, काफ़ी टाइम हो जाता है, से मुझे 2 years हो गए थे, फॉर प्रमोशन इज इंटरव्यू, उसका इंटरव्यू लिया जाता है. मेन पर्पस क्या है? इज टू मेजर द एटीट्यूड एंड एबिलिटी ऑफ द पर्सन एंड हिज फिटनेस टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हायर पोस्ट. राइट. नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज एग्जिट इंटरव्यू. नाउ हियर इन एन एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है? देखो अभी मुझे एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करते करते 10 years हो गए. नाउ आई एम बोर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मुझे इतना कुछ हाइक नहीं मिल रहा है, मुझे दूसरी जगह से एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर आया एंड आई एम नाउ लीविंग दिस ऑर्गेनाइजेशन. मैं ये कंपनी छोड़ के जा रही हूँ. अब कंपनी छोड़ के जाने के टाइम पे इंटरव्यू होता है फ्रॉम द मैनेजमेंट. अब उस टाइम अगेन मैनेजमेंट आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि why are you leaving the organization, how was your overall journey in the organization, आपको क्या क्या हमारे organizations में प्रॉब्लम दिखी, each and everything उस टाइम पे पूछा जाता है. अब उस टाइम पे आई विल बी वेरी मच फियरलेस, मुझे कोई डर नहीं होगा, जो भी मेरे मन में होगा मैं बिंदास बोल दूंगी. वाई? बिकॉज आई एम लीविंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, कोई क्या उखाड़ लेगा मेरा. राइट. तो बेसिकली एग्जिट इंटरव्यू में क्या होता है? दिस इंटरव्यू टेक प्लेस when an employee is leaving the organization. The main purpose is to know why the employee is leaving the organization so that corrective steps can be taken if the organization is at a default. अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम है, एटलीस्ट जो भी मैनेजमेंट है वो फ्यूचर में उसको करेक्ट कर सकता है. राइट. तो these all were the 8 types of interviews which are conducted in an organization. Right. Next topic and the final topic in this interview is what are the steps involved in an interviewing process. जब भी आप किसी का भी इंटरव्यू लेते हो तो पूरा ओवरऑल कौन कौन से उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक. द फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज द इंटरव्यूअर must see to it that the location must be good enough. जो भी लोकेशन है वहाँ पे आराम से जितने भी इंटरव्यूईज है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो आराम से पहुँच सके, उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे लोकेशन पे इंटरव्यू रखा जाना चाहिए. तो द फर्स्ट पॉइंट इज द लोकेशन मस्ट बी वाइज इनफ, गुड इनफ, सो दैट द कैंडिडेट्स कैन कम एंड विजिट इट. Second is preparing for the interview. Now we are here talking about the interviewer. इंटरव्यू ही तो चलो प्रिपेयर करके ही आएगा, बट द इंटरव्यूअर मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. वॉट साइट ऑफ वेकेंसीज इज देयर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, वॉट क्वेश्चंस विल आई आस्क to the interviewee, to the candidate. Each and everything must be prepared well in advance by the interviewer as well. ठीक है. Next is conducting the interview. When he is conducting the interview, when the candidate enters the office, there must be 2 things. First is listening.
whenever he asks the questions, ऐसा नहीं कि question पूछा and mentally he is somewhere else. Whatever the candidate gives the answers, he must listen to it carefully so that effective decision can be taken whether the candidate is suitable for our job or not. So each and everything must be listened carefully. And second is summarizing. समराइजिंग मीन्स जो भी वो बोल रहा है ओवरऑल फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ईच एंड एवरीथिंग का एक समरी ले लिया कि हाँ भाई दिस पर्सन इज गुड इन दिस पर्सन इज नॉट गुड इन दैट. तो ओवरऑल दिस पर्सन इज सुटेबल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, समझ सकते हो कब, जब इंटरव्यूअर केपेबल होगा तो ही. तो ओवरऑल समराइजिंग भी एक फैक्टर है जो इंटरव्यूइंग प्रोसेस में होना चाहिए. Next, the entire procedure of conducting the interview may be condensed into a single word, that is WASP. मतलब WASP. ये चारों, पूरा जो हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस है इस 4 वर्ड में आ गया. द फर्स्ट इज W स्टेट्स फॉर वेलकमिंग द कैंडिडेट. जब भी कोई कैंडिडेट अंदर आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए, जो भी इंटरव्यूअर है उसको अच्छे से उसको वेलकम करना चाहिए. ठीक है, उसको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए. दैट इज वेलकमिंग द कैंडिडेट. सेकेंड इज A स्टैंड्स फॉर अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैंडिडेट से जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना अबाउट हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन, बेसिकली हिज क्वालिफिकेशन, ओवरऑल व्हाट ही हैव डन, ओवरऑल ही इज़ कॉन्फिडेंट और नॉट. तो बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग जो उसमें क्वालिटीज़ हो सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना, दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. थर्ड इज S stands for supplying information to candidate. सिर्फ information लेना ही नहीं है, also information is to be given to the candidate about the organization, about the job which he can undertake in future. Fourth is parting, PARTING. Now here parting means when he is leaving, the candidate is leaving the room. ठीक है, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो द इंटरव्यूअर मस्ट ट्राई दैट ओवरऑल अ गुड रिस्पॉन्स, अ गुड फीडबैक is given to that particular candidate. He can say that basically we will call you back later, you was very good, so that overall he can be motivated और उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक अच्छा, एक करेक्ट मैसेज दिमाग में आए, एक पॉजिटिव चीज़ वो लेकर जाए, एक पॉजिटिव वाइब लेके जाए. तो बेसिकली दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो दिस वर्ड WASP overall it conducts all the interviewing process in this 4 words, right? Next point and the final point is making judgment and analyzing results. Overall, the interviewer must have a very good judgment about a particular person, that whether this person will prove an asset to my organization or a liability. If the person is an asset to the organization, the interviewer must try hard that वो बंदा छोड़ के ना जाए, वो बंदा कहीं ना कहीं हमारी कंपनी में ही आ जाए. तो ओवरऑल मेकिंग जजमेंट एंड फाइनली एनालाइजिंग द रिजल्ट इज द फाइनल स्टेप इन द इंटरव्यूइंग प्रोसेस. ओके, सो in today's video I have discussed about the interview topic. I hope everything is clear to all. Chalo, see you later on. We will come up with a new topic. Bye bye.